Hello and welcome to learning session number 8 of chapter number 5, which is towards green energy. So in this chapter, so far what all we have seen? We have seen the definition of energy. We had seen its different types and different forms. Then we saw how electrical energy is generated in a generator using Michael Faraday's principle of electromagnetic induction. Then we had seen thermal power plants, nuclear power plants based on natural gas, and all of them had their unique advantages and limitations. Okay. Then we had seen green energy. Green energy is something which can be replenished again and again. जिसका एनर्जी का सोर्स है उसको बार बार रिप्लेनिश कर सकते हैं, बार बार भर सकते हैं, and it is unlimited. Next we had seen hydroelectric power plants and power plants based on wind turbines, and what are their advantages and limitations. In the last class we had seen the photovoltaic effect, right? So what is photovoltaic effect? Photo मतलब sunlight से आने वाली एनर्जी, voltaic यानी electrical energy. So process where the radiation coming from the sun is directly converted into electrical energy is known as photovoltaic energy. Okay, and we had seen series में रखेंगे दो solar cells को तो क्या होगा, और parallel में रखेंगे तो क्या होगा. So when we keep two solar cells in series, then potential difference is going to be added, या फिर voltage is going to be added, and current is going to remain the same when you connect two solar cells in series. What is going to happen in parallel? When you connect two solar cells in parallel, the voltage is going to remain same, or the potential difference is going to remain the same, but the current is going to get added. So in real world, if you want a solar cell to give certain current का output and certain voltage का output, तो तुम लोग क्या करोगे, दोनों कॉम्बिनेशन यूज करोगे. कुछ सोलर सेल्स को तुम लोग सीरीज में लगा दोगे, कुछ सेल्स को तुम लोग पैरेलल में लगा दोगे, ताकि तुम लोग का ऐड करके, दोनों चीज को ऐड करके तुम लोग को वोल्टेज जितना चाहिए उतना आ जाए और करंट जितना चाहिए था उतना आ जाए. ओके, सो यू यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ series and parallel solar cells in real life. The topics we are going to cover today are, firstly we are going to quickly cover whatever was remaining in this topic of electrical energy generation using solar energy and revise some important points. And then we are today going to see solar thermal energy. So दो तरीके थे, राइट? सनलाइट का जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का. तो पहला तरीका क्या था, फोटोवोल्टेइक सेल, and second तरीका ये है, solar thermal cell. Okay, so we are going to see that in detail today. The new words we are going to learn today are, first is inverter, second is employee. Okay, inverter and employee. So one point which was remaining in solar photovoltaic cell was, a good solar cell can have an efficiency of around 15%. से efficiency ये word का meaning क्या? I remember telling you efficiency मतलब कम से कम पावर इनपुट में ज्यादा से ज्यादा पावर आउटपुट होना चाहिए. ओके, सो अगर कम पावर इनपुट में ज्यादा पावर आउटपुट आ गया, यू विल से इट इज वेरी एफिशिएंट, वो मशीन का एफिशिएंसी बहुत अच्छा है. और अगर समझो उल्टा हो गया, अगर तुम लोग को पावर इनपुट बहुत ज्यादा देना पड़ा और आउटपुट बहुत कम है, इन दैट केस यू विल से द एफिशिएंसी इज वेरी बैड, इट इज नॉट एन एफिशिएंट मशीन. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला कि एक अच्छे सोलर सेल का एफिशिएंसी कितना होता है, 15%. देन दे हैव आल्सो एक्सप्लेन्ड इट यूजिंग एन एग्जांपल. ओके, इट मींस दैट इफ अ सोलर पैनल रिसीव्स पावर ऑफ 100 वाट, 100 वाट का पावर सोलर सेल के ऊपर गिर रहा है सनलाइट की तरह. ओके, सनलाइट के फॉर्म में, फ्रॉम सोलर रेडिएशन, द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट फ्रॉम द पैनल विल बी 15 वाट्स. सो पावर इनपुट कितना था, 100 वाट्स, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कितना कन्वर्ट हुआ, सिर्फ 15. सो जो बाकी का कितना बच जाता है, 75, राइट? नहीं, 85. ये जो 85 वाट बच जाता है वो वेस्ट हो जाता है, सिर्फ 15 वाट हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है. ओके, सो दैट इज नोन एज दैट इज व्हाट वी मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ 15%. अगर 100 वाट्स सन से आ रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सिर्फ 15 कन्वर्ट होगा. ओके, सो एक अच्छे सोलर सेल का एफिशिएंसी 15% होता है. अगर तुम लोग ने थोड़े सस्ते ले लिए सोलर सेल्स तो इसका 15% से कम भी हो सकता है. Okay, again this part, the last point we had seen in detail last time using a diagram, right? So quickly to revise it, many solar cells come together to form a solar panel. Many solar panels connected in series form a solar string, and many solar strings connected in parallel are solar array. Okay, forms a solar array. So
सोलर सेल्स को साथ में लेके आ जाओ तो सोलर पैनल बनेगा, सोलर पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट कर दो तो सोलर स्ट्रिंग बन जाएगा, सोलर स्ट्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करना है, देन यू विल गेट अ सोलर अरे। तो लास्ट स्टेप में तुम लोग पैरेलल में कनेक्ट करोगे, उसके पहले स्टेप में हमेशा सीरीज में कनेक्ट करोगे। ओके, मूविंग अहेड, again this first point we had seen, power available from solar cells is DC। okay, DC मतलब डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट मतलब उसमें से जो वो जो करंट फॉर्म हो रहा है उसका डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, सेम डायरेक्शन का करंट होगा। तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में करंट का डायरेक्शन थोड़े थोड़े समय में चेंज होते रहेगा, दैट्स ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, सो सोलर सेल से किस टाइप का मिल रहा है हम लोग को, डायरेक्ट करंट मिल रहा है। So in applications which need DC power, example electric lights based on LEDs, which is light emitting diodes। LED से बने हुए जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स होते हैं उसमें DC पावर यूज होता है। ओके, सो उसमें डायरेक्ट ये जो सोलर सेल का पावर है उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो तुम लोग। ओके, दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट। However, since the energy from solar cell is available only in presence of sunlight, the energy has to be stored in batteries for use at a later time। Okay, सो सोलर सेल से जो एनर्जी मिल रही है वो किससे मिल रही है हम लोग को, इट इज वी आर गेटिंग इट बिकॉज ऑफ सनलाइट, राइट। बट सनलाइट हमेशा होता है क्या, सनलाइट हमेशा नहीं होता। सो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब एनर्जी मिल रही है तुम लोग को दिन के समय, तब तुम लोग को उस एनर्जी को एक बैटरी में स्टोर करना पड़ेगा। फिर जब सनलाइट नहीं है और तभी तुम लोग को यूज करना है एनर्जी, यू कैन यूज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी टू कैरी आउट वॉट एवर टास्क यू हैव टू परफॉर्म। ओके, सो दैट्स योर सेकेंड पॉइंट कि सनलाइट के टाइम पे ही हम लोग को एनर्जी मिलने वाली है, सो एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ेगा बैटरी में। नेक्स्ट, हाउएवर मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज रन ऑन एसी पावर। डोमेस्टिक मतलब घर के अंदर, ओके, डोमेस्टिक यानी घर के अंदर, इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में, फैक्ट्रीज में एक्सेट्रा, वहां पे ज्यादा करके जो इक्विपमेंट है वो एसी पावर पे चलते हैं। अगेन व्हाट इज एसी, डीसी का ऑपोजिट, डीसी इज डायरेक्ट करंट, तो एसी इज अल्टरनेटिंग करंट। ओके, डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहेगा। सो ज्यादा करके हमारे जो इक्विपमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल तुम लोग का जो मोबाइल का चार्जर होगा, लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, टीवी होगा, ऑल दीज मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स विच यू यूज डोमेस्टिकली यानी घर के अंदर, एज वेल एज इन इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, वो सब एसी पावर पे चलते हैं। ओके, अल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं। In such case, the DC solar power must be converted to AC power using an electronic device called inverter। तो अगर तुम लोग को सोलर सेल से जो एनर्जी मिली है उसको तुम लोग को घर पे यूज करना है, जिस और घर पे कौन से डिवाइस है, घर पे सारे इक्विपमेंट एसी वाला है और सोलर सेल से मिल रहा है डीसी, तो तुम लोग को बीच में इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। वो इन्वर्टर का क्या काम है, सोलर सेल से जो डीसी करंट मिल रहा है उसको एसी कन्वर्ट में कन्वर्ट करने का काम है इन्वर्टर का। ओके, सो यू पुट एन इन्वर्टर सो दैट direct current coming from the solar cell is converted into alternating current। okay, so that's your last point for solar photovoltaic cell। these are the diagrams for the same। यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में डायग्राम दिया you all need not copy it, but यहाँ पे राइट साइड में जो फ्लो चार्ट दिया that you all must copy in your notebooks। okay, so यहाँ पे डायग्राम दिया, राइट, you see ये छोटे छोटे सोलर पैनल्स है, सोलर पैनल से सोलर स्ट्रिंग्स बने हैं और सोलर स्ट्रिंग से सोलर अरे बना है। ओके, सो इन सारे अरेज से जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है वो सब यहाँ पे आके कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ओके, यहाँ पे आके सब मिल रहा है। सो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे इन्वर्टर है और एक ट्रांसफार्मर है। इन्वर्टर का क्या काम है, वी हैड सीन, राइट, इन्वर्टर का काम है जो कुछ भी डायरेक्ट करंट है उसको ऑल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देना। सो दैट्स द वर्क ऑफ इन्वर्टर। तो ट्रांसफार्मर क्या है, ओके, सो ट्रांसफार्मर का काम बेसिकली होता है कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरीके से एडजस्ट करे ताकि वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पावर ग्रिड दिख रहा है, तुम लोग ने ये सारे स्ट्रक्चर्स देखे होंगे हाईवेज वगैरह पे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। सो जहां से इलेक्ट्रिसिटी बना है वहां से लेके घर तक पहुंचने के लिए ये पावर ग्रिड यूज होता है, राइट। सो अगर एक सर्टेन करंट का और एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होगा तो दूर तक जा सकता है और लॉस एकदम कम होगा। सो एडजस्ट करने के लिए करंट और वोल्टेज का वैल्यू यू नीड ट्रांसफार्मर। ओके, सो दैट्स द रोल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो सोलर अरे से तुम लोग सन का एनर्जी कलेक्ट करोगे इन लाइट फॉर्म, उसको यहाँ पे यू विल कन्वर्ट दैट लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एवरीथिंग विल कम एंड पास थ्रू द इन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर। इन्वर्टर में
डीसी का एसी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर में करंट और वोल्टेज का वैल्यूज एडजस्ट होके वो पावर ग्रिड में ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा. ओके, सो दैट्स योर स्कीमेटिक फॉर सोलर फोटोवोल्टेइक स्टेशन. अभी यहाँ पे सेम चीज का फ्लो चार्ट दिया. ओके, सो फर्स्ट यू हैव sunlight which is reaching your solar cell. That sunlight is being converted into electrical energy and being stored in a battery. बैटरी में स्टोर करने के बाद अगर समझो उसको एसी के लिए, एसी इक्विपमेंट के लिए यूज करना है, सो उस डीसी को, बैटरी में डीसी करंट स्टोर होगा, उस डीसी करंट को तुम लोग इन्वर्टर से एसी करंट में कन्वर्ट करोगे. एंड वंस यू हैव एसी करंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वर्किंग ऑन एसी पावर कैन बी यूज्ड यूजिंग द power collected by solar cell. Okay, so this is your flow chart. Make sure you are drawing this flow chart and memorizing this flow chart. It might be asked in the exam. Okay, in this chapter flow charts are very important. Okay, now end of one end of chapter question. What are the advantages and limitations of solar energy? Okay, what are the advantages, क्या अच्छी बात है, and limitations, क्या क्या problems है solar energy में. So just take 30 seconds, pause for 30 seconds and think what advantages and limitations you all can think of. Okay, so I'm going to give you all some silent time. I'm going to wait for you all, and in this time I want you all to think about advantages and disadvantages of a solar cell. Okay, I'm going to wait for 10 seconds. Okay, I hope you all have been thinking about it. The things you all could think about was, does it burn fossil fuels? उसका एनर्जी अनलिमिटेड है, अपने आप रिप्लेनिश होने वाला है क्या? उससे किसी प्लांट्स और एनिमल्स को डेंजर होने वाला है क्या? आर दे गोइंग टू बी हार्म्ड? इज द एनर्जी अवेलेबल 24/7, जब भी मुझे चाहिए तब भी वो अवेलेबल होने वाला है क्या? एटसेट्रा एटसेट्रा. ऑल दीज थिंग्स यू ऑल कुड हैव थॉट अबाउट व्हाइल थिंकिंग अबाउट दिस question. Okay, now let us see the answer. So first, advantages of solar energy. First, solar energy is a renewable source of energy. Renewable matlab it can be replenished again and again. Sunlight to har roz aayega, right? Every day I will get unlimited amount of sunlight. So sunlight is a renewable source of energy. That's why solar energy is renewable source of energy. Next, solar energy does not cause pollution. Why? Because we are not burning any fuel, right? कोई fuel burn नहीं कर रहे, इसलिए कोई gases नहीं निकलेंगे, कोई gases नहीं निकलेंगे, इसलिए pollution नहीं होगा. Okay, so solar energy does not cause pollution. So these two are advantages of solar cell. Next, limitations of solar cell. क्या क्या problem है? First, solar energy is difficult to employ. Employ यानी use करना. Okay, employ मतलब use करना. So why is solar energy difficult to employ? We saw, right? Solar cell, it converts sunlight का energy into direct current. Whereas घर पे ज्यादातर जो चीजें use करते हैं हम लोग, वो alternating current पे काम करते हैं. So that is why it is difficult to employ. Okay. Next point, solar energy cannot be used at night or on cloudy days. तो अगर रात का समय है और तुम लोग को solar energy use करना, it will be difficult because sun का light नहीं है, तो it won't generate electrical energy. Even on cloudy days, especially during rainy days, अभी जैसा rainy days चल रहा है, अगर 3-4 दिन continuously बारिश चल रही है, so you won't get electrical energy converted because of the clouds. Okay. Last point, solar energy is not available uniformly during the daytime. Uniformly during the daytime यानी सुबह बहुत कम सनलाइट होगा, दोपहर को बहुत ज्यादा सनलाइट होगा, शाम को बहुत कम सनलाइट होगा. तो यूनिफॉर्म सनलाइट नहीं मिल रहा है, कभी ज्यादा सनलाइट मिल रहा है, कभी कम सनलाइट मिल रहा है. ओके, एंड एट ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ. सो अगर समझो इक्वेटर के पास होगा तुम्हारा घर, तो वहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट आएगी, राइट? सो वहां पे बहुत सेंस बनता है सोलर एनर्जी का प्लांट लगाने में. बट समझो अगर तुम लोग पोल्स के पास में रहते हो, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, या फिर नॉर्थ कनाडा में रह रहे हो, सो इन सब जगह पे बिकॉज आप क्लोजर टू द पोल्स, उनको कम सनलाइट मिलेगा. सो वहां पे सोलर एनर्जी इतना ज्यादा सेंस नहीं बनता. ओके, so solar energy is not uniformly available during the daytime and at all places on earth. So these are the limitations of solar energy. We are moving ahead with solar thermal plant. Okay, so this is the last type of power plant which we are going to study in this chapter.
Okay, so first let us see in the leftmost diagram. Okay, यहाँ पे तुम लोग को एक ग्रे कलर का टिन जैसा कुछ दिख रहा है, ग्रे कलर का टिन, राइट? ये बेसिकली पतरा है जो ऐसा शेप्ड है, ओके, एक बाउल की तरह शेप्ड है, एंड इट इज नोन एज रिफ्लेक्टर. इसका नाम क्या है? रिफ्लेक्टर. व्हाई इज इट कॉल्ड अ रिफ्लेक्टर? बिकॉज इसका काम क्या है, सन से जो कुछ भी सनलाइट आ रहा है ये इस रिफ्लेक्टर पे इंसिडेंट होने वाला है, और रिफ्लेक्टर पे इंसिडेंट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा उस सनलाइट को. सो रिफ्लेक्ट कहाँ पे करेगा? वो एक पाइप पे रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए उसका शेप कर्व्ड है. सो एक कॉनकेव मिरर की तरह हो गया, राइट? कॉनकेव मिरर वी हैव स्टडीड. सो कॉनकेव मिरर इज अ कॉन्वर्जिंग मिरर. सो कॉन्वर्ज एक पॉइंट पे करेगा. सो पॉइंट के जहां पे भी वो कॉन्वर्ज करेगा सारे के सारे लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने के बाद, वहां पे तुम लोग एक पाइप लगा रहे हो. ओके, सो ये पाइप में क्या है? पाइप से देयर इज वाटर फ्लोइंग. सो इफ यू सी यहाँ पे ब्लू कलर का पानी है, एंड एज इट गोज थ्रू द रिफ्लेक्टर, जब निकल रहा हो वो रेड कलर का बन रहा है, बिकॉज इट इज गेटिंग हीटेड अप. जो कुछ भी सनलाइट यहाँ से आ रहा है रिफ्लेक्टर पे जाके रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे फोकस हो रहा है इस पाइप के ऊपर, और फोकस की वजह से पाइप के अंदर का जो पानी है वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है. ओके, सो दिस पाइप इज नोन एज द एब्जॉर्बर. ओके, यहाँ पे लिखा है, राइट? सो दिस पाइप इज नोन एज द एब्जॉर्बर. सो क्या हो रहा है? sunlight is coming from the sun that is being focused on the absorber using a reflector, and in that absorber you have water, then that water is getting heated up. So now let us go to the diagram on the right hand side. Okay, so if you see यहाँ पे तुम्हारे बहुत सारे रिफ्लेक्टर्स है. रिफ्लेक्टर नंबर 1, रिफ्लेक्टर नंबर 2, रिफ्लेक्टर नंबर 3. सिमिलरली यहाँ पे भी 1 2 3 1 2 3 सबको बाजू बाजू में लगा है, और यहाँ से इफ यू सी यहाँ से सब ब्लू कलर का पानी जा रहा है. ओके, ब्लू कलर का पानी जाके फिर बोल रहे हैं इस रिफ्लेक्टर में थोड़ा, इस रिफ्लेक्टर में थोड़ा, इस रिफ्लेक्टर में थोड़ा, सब में थोड़ा थोड़ा पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. तो रिफ्लेक्टर क्या करने वाला है? सनलाइट को इस पाइप पे फोकस करके पाइप के अंदर का या फिर एब्जॉर्बर के अंदर का पानी को गर्म करने वाला है. ओके, एंड यहाँ से इफ यू सी ये पानी अंदर घुसते समय ब्लू कलर का था, when it is coming out it is red colored, which means it is heated now. Okay, so this hot water is then going on and becoming steam. इतना गर्म हो जाता है कि वो steam में convert हो जाता है. Okay, and once we have steam we already know what happens, right? अगर तुम लोग को steam में से power energy, sorry, steam में से electrical energy generate करना है, what you do is put that steam on a steam turbine, attach that steam turbine to a generator, and that generator will generate electrical energy for you. Okay, and once the steam is cooled down, वहां टर्बाइन में से निकाल के उसको एक कंडेंसर में डाल दो. कंडेंसर में क्या होता है? कंडेंसर में एक कूलिंग टावर से ठंडा पानी आता है और इस स्टीम को ठंडा करके पानी में बदल देता है, और फिर पंप से उसको वापस इस रिफ्लेक्टर्स में पहुंचा देता है. ओके, सो राइट साइड वाला जो कुछ भी पार्ट है, अगेन ऑलरेडी वी हैव सीन इन सो मच डिटेल, वी हैव सीन दिस इन डिटेल in thermal power plants, in nuclear power plants, etc etc. So the same things are going to apply here. बस फर्क क्या है? स्टीम किससे बन रहा है उसमें फर्क आता है. ओके, थर्मल पावर प्लांट में कोल जला के स्टीम बना रहे थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से स्टीम बना रहे थे, एंड यहाँ पे सोलर थर्मल पावर प्लांट में सोलर एनर्जी या फिर सनलाइट को एक एब्जॉर्बर पे कॉन्सेंट्रेट करवा के पानी का स्टीम बना रहे हैं. ओके, सो लेफ्ट साइड का हमेशा चेंज होता है, राइट साइड का हमेशा generally same होता है. Okay, so this is the working of your solar thermal power plant. I have told you not to copy this diagram, and there's a reason behind it. Okay, तुम लोग को आगे में copy करने बोलूंगा. So there's a question given at the end of your chapter which asks, draw a schematic diagram of solar thermal electric energy generation. Okay, so you have to be very careful. Okay, ये सोलर एनर्जी बोल रहे हैं, सोलर थर्मल एनर्जी बोल रहे हैं. सोलर एनर्जी सिंपली बोल दिया, इट वुड मीन फोटोवोल्टाइक सेल से बना रहे हैं. सोलर थर्मल बोल दिया, थर्मल यानी क्या? गर्मी, राइट? सो सोलर थर्मल में क्या हो रहा है? रिफ्लेक्टर्स से फोकस होके एब्जॉर्बर बहुत गर्म हो रहा है, इसलिए इस टाइप ऑफ एनर्जी जनरेशन इज नोन एज सोलर थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन. ओके, सो इसका स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ कर लें. तो इसका स्कीमेटिक डायग्राम में क्या है? बेसिकली यही जो हमने अभी डिटेल में समझ के लिए इसको ड्रॉ कर लें. ओके, सो ड्रॉ दिस एंटायर डायग्राम. नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड what each and everything is doing here in this diagram, try to draw this diagram without seeing. Okay,
एक बार इसको देख लो and try to draw this diagram without seeing in your notebooks. If you still can't draw it without seeing, then you all can see it in the textbook or on the screen, okay? But try to draw it without seeing. So तुम लोग का practice भी हो जाएगा. So copy this diagram under the question of draw a schematic diagram of solar thermal electric energy generation. Okay, so that covers this question also. Next question, draw neat and label diagrams of, ये क्वेश्चन नंबर 14 है तुम्हारे चैप्टर के पीछे का. उसमें से ए पार्ट इज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन. ओके, सो पिछला जो डायग्राम था क्या था, स्कीमेटिक था. सेकंड में क्या बोल रहे हैं, सेकंड में जैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ड्रॉ करना है. सो बेसिकली इट्स अ फ्लो चार्ट. ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच यू the form in which you get the energy from sun is solar energy, right? You get energy in the form of solar energy or light energy from the sun. That is then converted into thermal energy using what? Using reflectors. Those reflectors concentrate all the sunlight in one particular line, and in that line you put the absorber. So solar energy from the sun is converted into thermal energy first. Then the thermal energy is then converted into kinetic energy of steam. How? Inside the absorber you have water, and that water is converted into steam because of all the thermal energy, and that steam has some kinetic energy. Okay, then this kinetic energy in the steam is converted into kinetic energy in the turbine, right? Because that steam is then going to go and hit the turbine, and the turbine will start rotating. So once the turbine starts rotating, the turbine will also have kinetic energy, and that kinetic energy of turbine is going to be converted into electrical energy of electrical energy using the generator. Okay, so these are the steps in which energy is being converted into first solar se thermal, then thermal se kinetic energy of steam, then kinetic energy of turbine, and finally into electrical energy. Okay, so another interesting thing to note is in your textbook itself they have given a section called as do you know. So यहाँ पे दिया है कि पूरे वर्ल्ड में और पूरे इंडिया में किस टाइप की एनर्जी सोर्स से एनर्जी बना रहे हैं. ओके, सो इफ यू सी इन द वर्ल्ड 41% ऑफ एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड यूजिंग कोल, यानी थर्मल पावर प्लांट से. सो 41% यानी ऑलमोस्ट आधा पूरे वर्ल्ड में कोल से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, विच इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, राइट? क्योंकि कोल से बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, राइट? हमें एक स्टैक में से उसके सब डेडली और टॉक्सिक गैसेस निकालने पड़ते हैं, राइट? सो इट्स नॉट अ क्लीन एनर्जी सोर्स. दिस इज नॉट गुड न्यूज फॉर अस. ओके, सो वर्ल्ड में 40% है, वजह इंडिया में तो 60% है. सो आधे से ज्यादा जो कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब कोल पावर प्लांट से या फिर थर्मल पावर प्लांट से आ रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग टू हैव. नेक्स्ट इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस से इलेक्ट्रिसिटी कितना बन रहा है वर्ल्ड में? 22%. ओके, वजह इंडिया में काफी कम है, 8%. सिमिलरली यू कैन ऑल्सो चेक आउट हाइड्रो इलेक्ट्रिक का कितना है, न्यूक्लियर का कितना है, एटसेट्रा एटसेट्रा. इवन इफ यू सी न्यूक्लियर एनर्जी कितना बन रहा है वर्ल्ड में? 11%, वजह इंडिया में सिर्फ 2%. एंड इंडिया हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ थोरियम. सो इंडिया इज नाउ ट्राइंग टू रिसर्च ऑन थोरियम रिएक्टर्स. ओके, इट्स अ फिजन रिएक्टर, न्यूक्लियर फिजन ही होगा, बट यूरेनियम के बजाय अब वो थोरियम पे भी कैसे करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, उस पर रिसर्च चल रहा है. ओके, सो इंडिया नीड्स टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर एनर्जी का कैपेसिटी ऑल्सो. एक बार न्यूक्लियर एनर्जी का कैपेसिटी बढ़ गया फिर कोल अपने आप कम हो जाएगा और न्यूक्लियर वेस्ट का प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाएगा, बट एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज रिन्यूएबल. रिन्यूएबल में विंड सोलर वगैरह आते हैं जो जिसका एनर्जी सोर्स अनलिमिटेड होता है. ओके, सो वर्ल्ड में 6% है. विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिया इज बेटर देन द वर्ल्ड. ओके, इट इज ऑलमोस्ट 16%. सो 16% हमारा इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स से आता है. सो ये सोलर फार्म्स में से आता है या फिर विंड फार्म्स में से आता है, जहां पे बहुत लार्ज स्केल में हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं. सो इन इंडिया, इफ यू वांट टू summarize, India needs to decrease its coal dependence. कोल से कम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी है, न्यूक्लियर थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, और रिन्यूएबल जितना हो सके और बढ़ाते ही रहना ही है. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम
पूरे वर्ल्ड का 100% ऑफ एनर्जी शुड बी क्रिएटेड बाय रिन्यूएबल सोर्स, दैट इज आवर गोल, बट वी कैन नॉट डायरेक्टली स्टार्ट डूइंग दैट बिकॉज उतना अभी टेक्नोलॉजी आगे नहीं हुआ है, बिकॉज रिन्यूएबल इज एक्सपेंसिव। विंड हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, सोलर हमेशा एनर्जी अवेलेबल नहीं होती है, सोलर सेल्स महंगे होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो उसमें भी काफी प्रॉब्लम्स है, बट वी आर ट्राइंग टू सॉल्व इट यूजिंग research and policy. Okay, so it's an interesting box to analyze and think about. Okay, where does world stand with respect to energy sources, and where does India stand with respect to energy sources? Okay, so that's it for today. The two new words we learned today were, first is inverter. Inverter is a device that converts direct current into alternating current, and employ मतलब use करना, okay, making use of. So these are the two words you will learn today. Make sure you are making sentences and writing not only the meanings of these words, but also make sentences out of these words and write it in your notebooks. Okay. Okay, that's it for today. Hope you guys enjoyed and hope you guys understood whatever was discussed today. And I will see you all in the next class. Okay. See you guys. Bye.